Hello, all of you, class 10 subject chemistry, and we were doing chapter number 2 acid, bases, and salt. Now, the topic that we are going to do today is properties of bases. So, first property of base was bitter taste. We have learnt it already. Soapy to touch, then turns red litmus to blue, then conducts electricity, therefore known as electrolytes. Due to ions, electricity can be conducted. These 4 points we have learnt previously. Now moving on to the point number 5th. Look here, what's the point? Base plus metals gives salt plus hydrogen. So whenever a base is going to react with a metal, salt and hydrogen are formed as a product. Look here, I've taken NaOH, that means OH represents the base, Zn zinc, and a salt is formed. Can you see what sort of salt is formed? Na2ZnO2. This is known as sodium zincate. It's a very important equation, I would say, because in this a different type of complex salt is formed known as sodium zincate. In this zincate, ZnO2 2 negative is the anion, and Na sodium Na plus 1 is cation. Okay, then hydrogen gas is formed along with this. You are going to remember the next point, that is all metals do not react with bases. सारी की सारी metals जो हैं वो bases के साथ बेटा react नहीं करती. Fine. Next, hydrogen gas का test याद है? It gives pop sound. Fine. So this was the 5th point in which we have studied how bases are going to react with the metal so as to form salts and hydrogen. And the salt form is very much different. It's forming sodium zincate, Na2ZnO2. Next is bases plus acid gives salt plus water. You have read it already in the properties of acids, in which you have read that acids on reacting with base form salt and water. Now here is base reacts with acid to form salt and water. Nothing is different. 2 plus 4 is equal to 6. 4 plus 2 is also equal to 6. Okay, so acid plus base or base plus acid, it's the same thing here. So base plus acid gives salt plus water. In this, an example has been taken. For example, base NaOH, acid H2SO4, it will form a salt. Double displacement reaction is going to happen here. Look here, NaSO4 के साथ जाके Na2SO4 and H और OH क्या बनाएंगे? H2O, right? So what sort of reaction is this? This is a neutralization reaction in which H positive ion from acid. Acid में से कौन से ion निकलेंगे? H positive ions निकलेंगे. बेसिस में से कौन से निकलेंगे? OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे. H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स वाटर, दैट मीन्स न्यूट्रल हो जाएगा. दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज इट क्लियर? So what is going to happen when a base reacts with acid? Salt plus water is going to form, in which NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. Neutralization reaction is going to take place because this one is a neutralization reaction. So what's going to happen here? H positive from acid and OH negative from a base would react with each other so as to form water. And water, you all know, it's neutral compound. Okay. Now, the 7th property of base, in which we are going to study when a base reacts with non-metal oxides. So what is going to happen when a base is going to react with non-metal oxides? In acids we have reacted it with metal oxides, but base को हम किसके साथ react करवाने जा रहे हैं? non-metal oxides के साथ. और क्या बन रहा है? salt plus water. So आपको लग नहीं रहा कि ये कुछ neutralization reaction type है? तो अगर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप है तो बेस को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते थे? एसिड के साथ. अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया? नॉन मेटल ऑक्साइड. तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में. एग्जाम्पल के तौर पे हम बेस ले रहे हैं CaOH ट्वाइस, जिनके साथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, दैट मीन्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जा रही है. लुक हियर, सी मीन्स कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल. ओ मीन्स ऑक्साइड. सो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है. Is it clear? It's a non-metal oxide being used here. So this non-metal oxide on reacting with a base CaOH twice is going to give you CaCO3
calcium plus carbon dioxide would give calcium carbonate, and OH would form hydrogen containing compound known as water. So इधर नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, फिर वो एसिडिक हुआ नेचर में. तो ये किसकी इक्वेशन हुई, ये हुई न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ इक्वेशन. इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजेस ऑफ बेसिस. ओके, सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट बेस, दैट इज NaOH, sodium hydroxide. It is used in making soaps, paper and rayon. Rayon, you know, it's a synthetic fiber, right? Like nylon, same is rayon. Next is calcium hydroxide, CaOH twice. It's going to form bleaching powder. The formula for bleaching powder is CaOCl2. Next is MgOH twice, magnesium hydroxide. It's used to form antacid and it's used to cure indigestion. Now, what is in the case of indigestion? You should remember indigestion process, that means your stomach is being involved here, and stomach contains three things, right? Three of the components were present in stomach. One was the lining of mucus, second was HCl, hydrochloric acid, and third was pepsin, right? An inactive enzyme which was used for the digestion of protein. Now, in case of digestion, we know that an acid is involved. The second component which I have told you present in stomach, that was hydrochloric acid. If in case the acid contents increases, then we are going to apply a base over there. अगर एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, एसिड की मात्रा कहाँ ज़्यादा हो जाएगी, स्टमक में जो HCl है उसकी ना, तो अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एसिड के खिलाफ कुछ लेना पड़ेगा, दैट मीन्स एंटा एसिड लेना पड़ेगा जो इनडाइजेशन को क्योर कर देगा, और वो है MgOH ट्वाइस, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ओके, इट्स नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. नेक्स्ट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. मैंने आपको बोला था सिर्फ हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स नहीं होते, कार्बोनेट्स भी होते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो एक्ट एज एन एसिड, राइट? सो कार्बोनेट्स ये किसमें यूज होंगे, वॉशिंग सोडा एंड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. नाउ कमिंग हियर टू द टॉपिक, व्हाट इज हार्ड वाटर. हार्ड वाटर डजंट मीन अ सॉलिड वाटर. ओके, हार्ड वाटर का क्या मतलब है, वाटर इज ऑफ टू टाइप्स बेटा, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड. फाइन, हार्ड और सॉफ्ट में क्या फर्क है, सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स नहीं होती, और हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स होती हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स के कारण ये हार्ड वाटर जो है ये आपको प्रॉपर बोले तो लेदर फॉर्म नहीं करता जब हम उसके साथ डिटर्जेंट्स का वर्क करवाते हैं या सोप का वर्क करवाते हैं. ओके, सो सॉफ्ट करने के लिए उस हार्ड वाटर को हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3. इट इज यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा इन कुकिंग. इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेटा सोडा और पाउडर अलग अलग होते हैं. ओके, एंटी एसिड की तरह से यूज कर सकते हैं, एंड इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स आग बुझाने में भी ये काम आ सकता है. फाइन, क्यों आएगा आग बुझाने में काम, तो देखिए ना कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं आग बुझाने के केस में भी. फाइन, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So the next topic here is pH scale. What's the next topic? pH scale. Look here, have a neat look here. P is silent over here, that means P is small over here and H is capital. Okay, pH, small and capital. Fine. What does pH stand for? In Greek, P means potence. In Greek language, P means potence, but actually in English version, it's known as potential, okay? And H stands for hydrogen. So how much is the potential of hydrogen? It's that scale, fine. It was discovered by a Danish chemist known as Sorensen. The name of the chemist was Sorensen. In 1909, it was being discovered, devised. This pH scale was devised in that. The scale, what is the scale going to tell you? The scale on which the strength of an acid solution as well as a basic solution could be represented. ये वो scale है जिस पे आप acid कि कितनी सोल्यूशन की लेवल है या स्ट्रेंथ है वो बता सकते हैं, या बेसिक कितना है वो सोल्यूशन ये बता सकते हैं. इसको बताने के लिए किस टॉपिक का यूज किया जाता है, अभी यहाँ पर देखिए पोटेंशियल हाइड्रोजन का यूज करना है ना, तो आपने यूज करना है यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. व्हाट इज द मेन फंडा here used here, that is the use of hydrogen ion concentration.
नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं स्केल में, 0 से लेके 14 तक नंबर चलते हैं स्केल में। और स्केल में है क्या कि जो pH है that is inversely proportional 1 by inversely proportional to H concentration। जब हम यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, दिस इज नॉट एन हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है, बट जब आप स्क्वायर में लिखोगे ब्रैकेट्स में तो आप इसे बोलोगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नाउ हियर pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration. What does this means? pH is inversely proportional to concentration of hydrogen ion, right? So what does this means? This means that high the pH value, जितनी ज़्यादा pH value उतने ही low H positive ions। जितनी ज़्यादा pH value होगी बेटा उतना कम होंगे H positive ions। Fine. So look here, it's important thing that pH is a pure number, इट हैज़ नो यूनिट्स। pH एक प्योर नंबर है बेटा, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते। इज इट क्लियर? pH इज अ प्योर नंबर एंड इट हैज नो यूनिट्स। pH के साथ आप सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 आगे कोई यूनिट्स नहीं है, 2 आगे कोई यूनिट्स नहीं है, 10 आगे कोई यूनिट्स नहीं है। इज इट क्लियर? बिकॉज इट्स अ प्योर नंबर। फॉर द नेक्स्ट पार्ट लेट अस सी अ न्यूट्रल सब्सटेंस इज हैविंग एग्जैक्टली 7 pH। ओके, न्यूट्रल सब्सटेंस की कितनी होती है? एग्जैक्टली 7। एक एसिडिक की होगी लेस देन 7 और एक बेसिक सोल्यूशन की होगी मोर देन 7। लुक हियर अगेन, न्यूट्रल की होगी एग्जैक्टली 7 pH, एसिडिक की होगी लेस देन 7 और बेसिक की होगी मोर देन 7 pH। फाइन। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, लोअर द pH मोर एसिडिक। जितना कम pH की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब अगर मैं 2 एसिडिक pH वैल्यूज ले रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं 1 एंड ले रही हूं 4, 1 छोटा है कि 4 छोटा है? 1 छोटा है ना, तो जितनी छोटी pH की वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। तो 1 pH वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू 4 pH वाले से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हायर द pH वैल्यू मोर बेसिक। अब अगर ज्यादा pH वैल्यू है तो ज्यादा बेसिक होगा। अब इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूं एक 13 pH वैल्यू और एक 11 pH वैल्यू। 13 और 11 में से बड़ा कौन है? 13 है ना, तो 13 pH वैल्यू वाला मोर बेसिक होगा। अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी हो तो जब मैंने एसिडिक वैल्यू ली तो मैंने ली 1 एंड 4, दैट मीन 7 से कम। और जब मैंने बेसिक वैल्यू ली तो मैंने ली 11 एंड 13, दैट मीन 7 से ज्यादा। क्यों ली ऐसे? क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन आर लेस देन 7 pH एंड बेसिक सोल्यूशन हैव मोर देन 7 pH। और 7 तो मैंने ली नहीं क्योंकि एग्जैक्टली 7 क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। फॉर दिस have a look on the following table which is being drawn. Okay, have a look on this. What can you see in this table? I have made a table starting from 0 and ending to 14. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7. In 7 I have written neutral. 7 को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट नीचे को करके ऊपर 7 को न्यूट्रल लिख दिया है। 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक मैंने 7 से लेके आगे 14 तक मैंने बेसिक लिखे हैं और इधर 7 से पहले वाले मैंने सारे एसिडिक लिखे हैं। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि एसिडिक होते हैं लेस देन 7 एंड बेसिक होते हैं मोर देन 7। सो 7 से ज्यादा वाले बेसिक हैं और 7 से कम वाले क्या हैं? एसिडिक हैं। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, 3.5 तक हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स इधर को मान लेंगे और 3.5 से आगे तक मैं वीक एसिड्स मान रही हूँ। अब मैंने इन छोटे नंबर्स को वीक एसिड्स नहीं बोला, छोटे नंबर को क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्यों बोला? बिकॉज जितनी लोअर pH वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। क्लियर? अब इधर मैं अगर बात करूं तो इधर क्या मैंने किया? इधर मैंने जो ज्यादा वाले नंबर्स थे 11 12 13 14 तो मैंने इनको बोल दिया स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्यों बोला? क्योंकि हायर द pH वैल्यू मोर बेसिक। जितनी ज्यादा pH वैल्यू उतने ज्यादा बेसिक। अब बेटा एसिडिक में होता क्या है? एसिड में होता है H पॉजिटिव आयंस, राइट? और बेसिक में क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयंस। तो अब इधर ध्यान से देखिए, एसिड्स वाली साइड पे H पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं। इधर को जाते जाते अगर एसिडिटी बढ़ती है, अगर छोटे से की तरफ जाते जाते एसिडिटी बढ़ती है तो मतलब H पॉजिटिव आयंस बढ़ते हैं और OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? कम होते हैं। इज इट क्लियर?
OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं, फाइन। अब अगर मैं इधर बात करूं तो इधर क्या है, इधर आप ध्यान से देखेंगे, हम अगर इधर को जाते हैं तो अगर बेसिसिटी बढ़ती है तो क्या हो रहा है, इधर को जाते जाते आपके पास OH नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं और H पॉजिटिव आयंस कम हो रहे हैं। तो आप बेटा इधर देख के आप इतना बोल सकते हैं, इधर देख के कि क्या हो रहा है, इधर आपके पास एसिड्स में भी बताया गया कि OH नेगेटिव होते हैं और बेसिक में बताया गया कि H पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डू द बेसिक सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयंस, तो ये मत सोचिएगा तो वहां तो OH नेगेटिव होते हैं, हम लिखेंगे यस बेसिक सॉल्यूशन इज आल्सो हैविंग H पॉजिटिव आयंस बट द H पॉजिटिव आयंस आर वेरी लेस एज कंपेयर टू OH नेगेटिव ions, therefore they are basic in nature and not acidic in nature. Is it clear? So now I am having a question for you. Look over here. I am having solutions with pH A4, B1, C11, D7 and E9. Clear? Now these are the compounds with pH values. Okay, what you are going to do is आप इस क्वेश्चन को लेके आप इसके बाद में वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फाइन। ये आंसर सॉल्व करने के बाद दैट मीन्स न्यूट्रल, स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक एंड वीकली अल्कलाइन जब आप सॉल्व कर लेंगे फिर पॉज से हटाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड इसको चेक करने के लिए आपको इस टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर आपको याद होगा कि कौन से किधर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? सो हैव अ लुक, व्हाट इज द आंसर नाउ। आई होप सो आपने पॉज से हटा लिया है और अब आपको आंसर्स दिख रहे होंगे। द आंसर्स आर D, C, B, A, E इन द सीरीज। ओके, सो आप प्लीज अपने आप को चेक करिए कि वेदर यू आर राइट और नॉट, और इसको थॉरोली स्टडी करिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइज।